میں آپ سب کو مسیح کے جلالی بابرکت فاتح اور جلالی نام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ خدا کا آج کا زندہ کلام جو خدا آج ہم سے کرنے کو ہے وہ ہماری مشکلوں کے لیے، ہماری پریشانیوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر ہماری رہنمائی کے لیے ہوگا۔ عزیزو، ہم نے پچھلی دفعہ جب آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو آیت اس سال کو آغاز کرنے کی ملی تھی، اور وہ تھی پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں آیت کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ سال جو ہے وہ قائم رہنے کا سال ہے، یہ سال بڑھنے کا سال ہے، یہ سال اس سے جڑے رہنے کا سال ہے، یہ سال برکتوں کا سال ہے، یہ سال کامیابیوں کا سال ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کن کے لیے کامیابیوں کا سال ہے، کن کے لیے بڑھنے کا سال ہے، کن کے لیے جو ہے وہ ترقی کا سال ہے، کن کے لیے نشو و نما کا سال ہے، آج ہم اس پر دیکھیں گے۔ آنے والے کچھ میسیجز جو ہیں وہ اسی قائم رہنے کے حوالے سے ہوں گے، اور جس میں ہم اپنی رہنمائی کے لیے ان باتوں کو سیکھ سکیں گے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کے وسیلہ سے ہم خدا میں قائم رہ سکتے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہم محبت میں قائم رہ سکتے ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کو جب ہم اپنی زندگی میں رکھتے ہیں جس کے وسیلہ سے خدا ہم میں قائم رہتا ہے، اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اسے جان جائیں۔ جو چیز ہمیں پتہ ہوگی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اس کے مطابق اس کے لحاظ سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو آج کی جو مرکزی آیت ہے، آئیے سب میرے ساتھ کلام مقدس جن کے پاس ہے وہ ضرور نکالیے گا، پرانے عہد نامہ میں سے، عہد عتیق میں سے، دوسری تواریخ کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ ضرور نکالیے گا۔ فرام اولڈ ٹیسٹمنٹ، 2 Chronicles chapter 7 verse 14، دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت۔ دوسرا تواریخ 7 باب اس کی 14 آیت، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کلام کے پڑھے جانے سنے جان پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے، اس حوالے سے ہم بخوبی واقف ہیں، کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں، کئی دفعہ سن بھی چکے ہیں، اور مختلف خادم دین نے اس کو مختلف انداز سے بیان بھی کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ وہ وقت تھا جب سلیمان بادشاہ نے ہیکل کو بنایا، اور ہیکل کو بنانے کے بعد اس وقت خدا کے ساتھ اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خدا اسے بتا رہا تھا کہ تب اگر میرے لوگ، پہلے تو اس آج کے میسج کو جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے ڈیوائن کال، یعنی الہی پکار، الہی بلاوا، الہی دعوت، الہی بلاہٹ، یعنی خدا کی طرف سے بلاہٹ تھی۔ اب یہ جو آیت ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، یا اس کو میں نے 3 حصوں پر اس پر میں نے غور کیا ہے۔ ہر کوئی خادم جو ہے جب اس کو دیکھتا ہے وہ مختلف انداز سے خدا کا روح جیسے اسے گائیڈ کرتا ہے ویسے ہی وہ اسے بیان کرتا ہے۔ تو آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ ہے خدا کی طرف سے الہی بلاہٹ، یعنی نیا سال، خدا کی محبت میں جڑنا، اس میں قائم رہنا، جو کہ پہلے یوحنا اور اس کے 4 باب اور اس کی 16 آیت میں ہم نے دیکھا ہے۔ اور جڑ کون سکتا ہے، قائم کون رہ سکتا ہے؟ جس کو اس کی بلاہٹ کا پتہ ہے، جس کو اپنے بلاوے کا پتہ ہے، جس کو اگر ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی شادی کا ہو، کوئی سالگرہ کا ہو، تو ہم دعوت نامے بھیجتے ہیں، یا ہم فون کر کے دعوت دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم اس جگہ پر، اس ہال میں ہم اکٹھے ہوں گے تاکہ ہم سب مل کر وہاں پر خدا کی شکر گزاری کر سکیں، یا ہم اپنے بچوں کی سالگرہ منا سکیں، یا کوئی منگنی کا پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے۔ یہ دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، اور خدا کی طرف سے جو ہے یہ دعوت نامہ تھا، یہ الہی بلاہٹ تھی اس کے لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، جو کہ خدا کے لوگ، نمبر 1 گاڈز پیپل، نمبر 2
खुदाई मौकफ यानी गॉड्स प्ली, और तीसरी बात खुदाई वादा यानी गॉड्स प्रॉमिस। और इस आयत के अंदर हम तीनों बातों को सीखेंगे कि खुदा की कॉल जो इलाही कॉल है वो खुदा के लोगों के लिए है, किसी और शख्स के लिए नहीं है। वो लोग जो खुदा के नाम से कहलाते हैं। और ये जो बात खुदा सुलेमान बादशाह से कर रहा था, ये किसी और शख्सियत के बारे में नहीं, किसी और कौम के बारे में नहीं, ये इसराइलियों के लिए बात कर रहा था। ये कॉल उस वक्त उनके लिए थी, उस वक्त उनके लिए कहा गया था, तब अगर मेरे लोग, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों की फिक्र की, उन इसराइलियों की जो मिस्र में फंस चुके थे। अगर हम देखें तो हम देखते हैं, अगर पुराने अहदनामा से आगाज करें और वहां पर हमें पता चलता है कि यूसुफ जो है वो हाकिम बना, वहां पर उसकी जो है वो वहां पर रहा, और उसी के वसीला से क्या हुआ कि वहां पर जो इसराइली लोग थे वो वहां पर मिस्रियों के गुलाम बन गए, उस बादशाह के वसीला से जो यूसुफ को नहीं जानते थे। और वहां पर रहते रहते इतने साल गुजर गए कि वो मिस्रियों की गुलामी में काम करते रहे। लेकिन खुदा अपने लोगों को बुलाना चाहता था, खुदा अपने लोगों को जो है वो एड्रेस करना चाहता था, खुदा अपने लोगों की फिक्र करता था कि मैंने जिन्हें चुना है, जो इसराइली जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वो वहां पर मिस्र में गुलामी की सूरत में रह रहे हैं। और वहां पर खुदा ने इंतजाम किया मूसा के वसीला से। मूसा पैदा हुआ, मूसा जो है पानी में बहा दिया जाता है, मूसा फराऊन के पास घर में पहुंच जाता है। मूसा को उसकी माँ फिराउन के घर में ही नर्स करती है, उसकी टेक केयर करती है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा को अपने लोगों की फिक्र है, वो इलाही भेद अपने लोगों पर जाहिर करता है, अपने लोगों को तैयार करता है ताकि अपने लोगों को जो है उनके गुनाहों से बाज कर दे, उन्हें सिखाए, उन्हें समझाए और अपने नाम के लिए इस्तेमाल करे। और यहाँ पर खुदा भी इसराइली कौम के लिए परेशान था और उसने मूसा को जो है वो भेजा, जिसने परवरिश फिराउन के घर में पाई, जिसने फिराउन के घर में रहकर 40 साल वहां पर रहा। उसके बाद फिर वो 40 साल खुदा ने उसको वहां से निकाला, बियाबान में भेज दिया, तैयार किया ताकि वो मूसा अपने लोगों को, इसराइलियों को वहां से निकाले। उसके बाद वो ही मूसा फिर वापस जाता है फिरौन के पास मिस्र में, वहां से इसराइलियों को आजाद करके लाता है ताकि क्या करे कि वो खुदा की बादशाही की बातों को सीख सकें, वो उसकी परस्तिश कर सकें। और इसराइली कौम जो कि मिस्र में गुलामी की सूरत में थी, वहां पर अपने आप को आसाइशों में समझते थे। जैसे ही वो वहां से निकले और निकलने के बाद हम देखते हैं कि उनकी बुड़बुड़ाहट हर जगह, हर लम्हा, हर वक्त बढ़ती रही। कहीं खाने की वजह से, कहीं पानी की वजह से, कहीं पहनने की वजह से, कहीं पर वो अपने आप को हर वक्त जो है वो ये समझते थे कि हम कमतर हो गए हैं, हमें जो वहां मिलता था वो यहां नहीं मिल रहा। मेरे अजीजों, जो इसराइली कौम थी वो बुड़बुड़ाहट में जी रही थी, लेकिन खुदा अपने लोगों को बुलाता है, कहता है तब अगर मेरे लोग, यानी उस बुलाहट को, उस जो मूसा को दी थी, वो बुलाहट जिसके वसीला से उसने इसराइल को वहां से निकालना था, वो उसे वहां से लेकर निकला और बियाबान में 40 साल जो है वो मुश्किलों में पड़े रहे, गाहे बगाहे खुदा को तंग करते रहे, खुदा को आवाजार करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा खुदा, उसकी मोहब्बत देखें। यही बात मैंने पहले यूहन्ना और उसके 4 बाब और 16 आयत में आपको समझाई थी कि उसकी मोहब्बत इतनी है कि हम जितने भी गुनाहगार हो जाएं तब भी वो माफ करने की कुदरत रखता है। और उसने लोगों को उनके गुनाहों की सजा जरूर दी, लेकिन फिर मूसा के कहने पर जो है रुक जाता रहा। लेकिन मेरे अजीजों, वही मूसा फिर वहां से इसराइल को लेकर निकलता है और निकलकर उस मुल्क केनान तक, जहां ना तो हारून पहुंच सका, ना मूसा पहुंच सका। और उसी लीडरशिप के अंदर खुदा ने एक और शख्स को बुलाहट दी और वो यशवा था, जो मूसा की लीडरशिप में रहकर सीखा, समझा, खुदा की ताबेदारी करना सीखी, क्योंकि उसको अपनी इलाही बुलाहट का पता चल चुका था और वो जानता था कि मैं जिस खुदा की परस्तिश करता हूं, और उसने कहा भी कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं तो खुदा ही की परस्तिश करूंगा, क्योंकि वो जान गया था
کہ मैं खुदा के लोगों में शामिल हो चुका हूं। और इस्राएल कौम गाहे बगाहे मुश्किलों परेशानियों से गुजर कर, उन मुश्किलों से जब गुजरते थे फिर वो बहक जाते थे, वो बातें भूल जाते थे जो खुदा ने उनके लिए की थी। मेरे अजीजों, हमें अपने आप को हमेशा हर लम्हा तैयार रखने की जरूरत है। हमें खुदा की जो बातें हैं वो भूलने की जरूरत नहीं है। हमें खुदा के जो नेमतें हैं, जो उसके फल हमारी जिंदगियों में हैं, उसे भूलने की जरूरत नहीं है। गाहे बगाहे हमें उस पर नजर दोहराने की जरूरत है, जिसके वसीला से हम जान सकते हैं कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और वो मोहब्बत में जो कायम रहता है वो हमेशा की जिंदगी में कायम हो जाता है, क्योंकि खुदा उसमें कायम हो जाता है। इब्राहिम को देखें, वो खुदा में कायम था, खुदा ने उसको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। मूसा को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया। उसके बाद यशवा को खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया, क्योंकि खुदा ने उसे ये अपने लोगों में शामिल कर लिया था। और वो खुदा के हजूर में बढ़ता फूलता फलता चला गया। और फिर हम देखते हैं इसी तरह बढ़ते चले जाएं तो हम दाऊद पर गौर करें तो दाऊद भी खुदा के उस जिम्रे में आ चुका था जहां पर उसे वो कह सकता था कि अगर मेरे लोग, गो के दाऊद ने भी गुनाह किया, हम देखते हैं कि वो भी खूनखार था, वो भी उसने भी बहुत सारे कत्ल किए थे जंगों के वसीला से। जितनी जंगें उसने लड़ी, इससे पहले कि वो जंग के लिए रवाना होता, इससे पहले कि वो अपने घर से कदम बाहर निकालता, हमेशा खुदा को पूछता कि क्या ये जरूरी है, क्या ये ऐसा करना, जिस काम के लिए मैं बढ़ रहा हूं उसमें तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, ये बात है खुदा के लोगों की। और आज हमें देखने की जरूरत है, उस वक्त बनी इस्राएल खुदा के लोगों के बारे में ये जो बात कही गई है, ये बनी इस्राएल के लिए थी। आज खुदा के लोग कौन हैं? ईमानदारों, ये खुदा के लोग मैं और आप हैं। आज हमें देखने की जरूरत है कि हमारी बुलाहट क्या है। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम खुदा में कितने कायम हैं। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। दाऊद ने मोहब्बत की, 66 जंगें लड़ी और 66 की 66 जीत कर वापस लौटा। इसी तरह हम देखते हैं कि सुलेमान बादशाह जब तक खुदा के साथ चलता रहा उस वक्त तक वो भी कामयाब रहा। अकल दनाई फहम उसकी जिंदगी में रही। और जब वो खुदा से भटक गया तो वो खुदा से बहुत दूर हो गया। मेरे अजीजों, जब हैकल को बनाने की बात आई तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने सुलेमान से कहा खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरी हैकल को नहीं बनाएगा। खुदा ने उससे कहा कि तेरा बेटा जो है इस काम को सरंजाम देगा। और यही काम जो 7वें बाब में हमें नजर आ रहा है कि सुलेमान बादशाह ने उस हैकल को बनाया। और उस हैकल को बनाने के बाद उस हैकल के बारे में खुदा उससे मुखातिब है। और इससे अगर इन्हीं आयतों में आगे जाके पढ़ें तो वहां लिखा है कि जो इस जगह पर दुआ करेगा या जो इसकी तरफ आंख उठाकर दुआ करेगा उसकी दुआ सुनी जाएगी। और मेरे अजीजों, यहाँ पर जिस बात पर आज हम गौर करने को जा रहे हैं कि खुदा, मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि खुदा के लोग, खुदाई मौक़िफ़ और खुदाई वादा। खुदा के लोग कौन हैं? उस वक्त बनी इस्राएल थे। आज हमें अपने कदमों पर खड़े होने की जरूरत है। आज हमें अपनी बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। आज हमें उस इलाही पुकार को पहचानने की जरूरत है कि खुदा ने हमें कहाँ रखा है, खुदा हमसे चाहता क्या है। खुदा चाहता है कि हम उसकी मोहब्बत में कायम हो जाएं, हम उसकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं। 2026 हो, 2027 आ जाए, 2028 हो, 2029 हो, 2030 हो, एंड सो ऑन, कितने भी साल क्यों ना आते चले जाएं, मेरे अजीजों, हम कभी भटकने नहीं पाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा हमारी जिंदगियों में रहता है। और जब हम उसकी पुकार को पहचान लेते हैं, जब हम अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हमें उसके नाम से कहलाने की जरूरत है ताकि हम कह सकें कि हम खुदा के लोग हैं। अपने आप को धोखा देना छोड़ दीजिए, इस बात को कहना छोड़ दीजिए कि हम खुदा के लोग हैं, जब हम खुदा की बातों को, उसके हुक्मों को मानते ही नहीं हैं, जब हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं है, जब हमारे अंदर खुदा के अहकाम ही नहीं है, जब हमारे अंदर हसद है, नफरत है, तो हम खुदा के लोग नहीं हैं। क्योंकि अगली आयत में खुदाई मौक़िफ़ यानी गॉड्स प्ली हमें नजर आता है। और वो क्या है कि खुदा ने मौक़िफ़ रखा कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो क्या करें? खाकसार बनकर दुआ करें। उचियां दुआवां किसे कम दियां नहीं, जो दिल च
बुराई परी होवे। ऊंची ऊंची दुआएं हमारे काम नहीं आती जब हम हलीमी में नहीं हैं, जब हम मोहब्बत नहीं रखते, जब हम खाकसार नहीं बनते, जब हम जो है उसके दीदार के तालिब नहीं। क्योंकि अगली आयत में लिखा है मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। रावां नहीं हुई रखनियां ने, फिर कहंदे भी रहना कि असी खुदा दे लोग हां। हम खुदा के लोग नहीं बन सकते। इस 2026 में अगर हमें खुदा के लोग बनने हैं तो हमें खुदा की बातों को अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है, सच्चाई पर खड़े होने की जरूरत है, राइचियसनेस पर खड़े हो जाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर में आ जाते हैं, क्योंकि खुदा का रूह वहां उतरता है जहां पाकीज़गी है, वहां नहीं उतरता जहां गुनाह है। खुदा का रूह हर एक जिंदगी में नहीं है, खुदा का रूह पाक लोगों के अंदर मौजूद है। ये बात समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, इस पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि खुदा का रूह हर जगह पर आकर ठहरता नहीं है। जहां नापाकी है वहां खुदा का रूह नहीं है, जहां खाकसारी नहीं वो वहां खुदा का रूह नहीं। वहां अपने आप को खुदा के लोग कहना फजूल है, अपने आप को खुदा के लोग कहना मेरा ख्याल है सरासर झूठ है। और अगर हम उसके दीदार के तालिब नहीं है, दुआ सी करनी नहीं, महीने लंघ जावे ते ही दुआ नहीं करते, तो हम तालिब उसके कैसे हो सकते हैं? तालिब इल्म को देखें, जब वो अपना कोर्स शुरू करता है अपनी किताबों में घुसा रहता है, अपनी किताबों में जो है वो अपना ध्यान लगाए रखता है ताकि जान सके कि जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें मेरे लिए क्या फायदेमंद है। और इसी तरह जो खुदा का दीदार के तालिब हैं या जो खुदा के तालिब इल्म हैं, जो खुदा को जानना चाहते हैं, वो खुदा के कलाम की बातों के अंदर हमेशा पड़े रहते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी बुरी राहें जो रास्त से हमें दूर ले जाती हैं उनको अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। और यही खुदाई मौकफ है, यही बात है जो 2026 में हमें खड़ा रखेगी, यही बात है जो 2026 में हमें उठाए रखेगी, यही बात है जो आने वाले सालों में हमें फ्रूटफुल बनाएगी, यही बात है जिसके वसीला से हमारी जिंदगियों में फल लगेंगे। आज लोगों की नजरें नेमतों पर होती हैं, नेमतें तो हर कोई हासिल कर लेता है। सबसे बड़ी बात है कि खुदा की मोहब्बत और उसका फल हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि खुदा हमारे अंदर मौजूद है और हम खुदा के लोग हैं। तो खुदा के लोग बनने के लिए हमें खाकसार बनने की जरूरत है, खुदा के लोग बनने के लिए हमें उसे ढूंढने की जरूरत है, खुदा के लोग बनने के लिए हमें अपनी बुरी राहों से बाज आने की जरूरत है, खुदा के लोग बनने के लिए हमारी आंखें खुदा की तरफ लगी रहनी चाहिए, खुदा के लोग बनने के लिए हम दुनियादारी से कट कर खुदा के रास्तों को अपने लिए चुने, और जो चुन लेता है वही खुदा के लोग हैं। और यही खुदाई मौकफ है, यही गॉड्स प्ली है, यही खुदा हमसे चाहता है। और फिर मेरे अजीजों, जो दो बातों के बाद जो तीसरी बात है वो हमें जो है और निखार के रख देती है कि खुदाई वादा। इस आयत के अंदर हमें गॉड्स प्रॉमिस नजर आता है, और वो क्या है कि मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। यानी सुनेगा खुदा किसकी? जो हलीम है, जो फरोतन है, जो मोहब्बत में कायम है, जो खुदा में जुड़ा हुआ है, जिसकी आंखें खुदा के लिए तरसती हैं, जो खुदा के हुजूर में आने की ख्वाहिश रखता है, जो बुरी राहों से फिर चुका है, जो खुदा के लिए अपने आप को हमेशा अव्वलीन मर्तबे पर रखता है और जो हमेशा अपनी आंखें खुदा के कलाम पर लगाए रखता है, वही खुदा के लोग कहलाएंगे और उन्हीं की दुआ सुनी जाएगी और उन्हीं के गुनाह माफ होंगे। 2025 या उससे पीछे जितने भी गुनाह हो चुके हैं, जो हमारी जिंदगियों से गुनाह सरजद हो चुके हैं, वो हमारी जिंदगियों से निकल जाएंगे जब हम खुदा के लोग बनकर खुदाई मौकफ को अपनी जिंदगी में रखेंगे। तो खुदाई वादा हमारी जिंदगी में पूरा होगा कि वो हमारी दुआ पर कान लगाएगा। फिर साड़ी जिंदगी दे एतराज मुक जाएंगे, दुआ करने दुआ सुनी नहीं जाती, फिर हम ये कहना छोड़ देंगे कि मैंने दुआ की लेकिन खुदा ने मुझे जवाब ना दिया, इसलिए क्योंकि हम वैसे दुआ कर ही नहीं रहे जैसे खुदा हमसे चाहता है, हम वैसे दुआ करते ही नहीं जैसे कलाम हमें सिखाता है। हमारा ध्यान खुदा से बहुत दूर है, हम चाहते हैं दुनियादारी भी राजी रहे और खुदा भी राजी रहे। तो मेरे अजीजों, ना तो हम ऐसा कर सकते हैं, ना हम उसमें बढ़ सकते हैं, ना ही हम जो है ऐसे खुदा को राजी कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस नए अहदनामा में हमें बखूबी सिखाता समझाता है कि
کہ ہم دو मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, और दो मालिकों की खिदमत जो करता है वो अपने आप को भी धोखा दे रहा है। जो खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਦੀਆ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। खुदा पैसे का भूखा नहीं है, और खुदा को पैसा, वो तो सिर्फ हमें देखता है कि हम कितने वफादार हैं उसके साथ। वो पैसा नहीं चाहता, वो हमारी फर्माबरदारी चाहता है। वो हमारे अंदर जो है वो फर्मा रवी जो हमारे अंदर खुदा ने रखी है वो देखना चाहता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम 10 अहकाम में देखें तो वहां लिखा है तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तो जो दुनियावी है वो तो अपनी जगह पे है, इससे बढ़कर हमें अपने बाप की जो आसमान पर है, जो आसमान, जब हम आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो हम आसमानी बाप की इज्जत क्या करेंगे। हमें इन चीजों को पाने के लिए हमें सीखने की जरूरत है कि हमारी डायरेक्शन सही है या नहीं। और 2026 अलार्मिंग ईयर है हमारे लिए। 2026 हमें सिखा रहा है कि हमें उन राहों से बाहर आने की जरूरत है जहां पर धोखाधड़ी है, जहां पर हम एक दूसरे के लिए दूसरों के खिलाफ खड़े होते हैं। मेरे अजीजों, मुखालफीन को अपनी जिंदगी से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुदा की प्रेजेंस आपको वहां पर खड़ा करके आपके मुखालफिन को शर्मिंदा कर सकती है। हमें उनके साथ उनके जैसा रवैया रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी उन राहों को देखने की जरूरत है। यानी वही बात है कि अक्सर व बेशतर होता क्या है कि हम अपना तिनका तो देख नहीं पाते, दूजे दा शतीर सानू बड़ा चंगी तरह नजर आ रहा होता है कि वह उसके अंदर ये खामी है, वो ये नहीं कर सकता। हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फरोतनी में आ जाएं और खुदावंद के हजूर में झुक जाएं और उससे कहें कि खुदावंद, मैं उस इलाही पुकार को जो तेरी तरफ से है उसे मैं पहचान चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं वैसे ही जीऊं जैसा तू चाहता है, ताकि मेरा शुमार खुदा के लोगों में हो। और शुमार उसी वक्त होगा जब हम खुदाई मौकफ को अपनी जिंदगी में रखेंगे। और जब खुदाई मौकफ को अपनी जिंदगी में रखेंगे तो मेरे अजीजों, हम फिर वो वादे जो हमारे लिए खुदा ने किए हैं, और इस आयत में भी लिखा है कि उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे वो किरमजी ही क्यों ना हो। हम देखते हैं नए ऐहदनामा में यीशु मसीह ने आके इसे भी पूरा कर दिया कि वो जो है आसमान छोड़कर जमीन पर आया, और जमीन पर जो है उसने सलीब पर हमारी खातिर जान दे दी। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन हमारी खातिर उसने हमारे सारे गुनाहों का बोझ अपने कांधों पर उठा लिया, ताकि हम आजाद हो जाएं और हम हमेशा की जिंदगी पालें। और लिखा है कि उनके मुल्क को बहाल कर देगा। मुल्क, वैसे तो डेफिनेशन देखी जाए, जिस टेरिटरी में आप रहते हैं, ये आपका खानदान भी हो सकता है, ये आपका घर भी हो सकता है, ये वो जगह भी हो सकती है जहां आप काम करते हैं। यानी वहां पर अगर आप कहीं गुलामी में हैं, मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, खुदा आपको वहां से बहाल करेगा, बल्कि बरोमंद करेगा, इकबालमंद करेगा, और वहीं पर आपको सक्सेस भी देगा और कामयाबी अता करेगा। ये वो सीढ़ियां हैं जो हमें जो है खुदा के मंसूबों और उसके वादों में नजर आती हैं कि खुदा चाहता है कि जैसे वो इस्राएल के लिए जो है वो अपने ख्यालात को उनके लिए हमेशा अपने ज़हन में रखता था कि वो आज़ाद हो जाएं, इसी तरह खुदा सेम ख्यालात हमारे लिए भी रखता है ताकि हम आज़ाद हो जाएं और हम खुदा के लोग कहलाएं। तो आज कॉल है आप सबके लिए, और जो यहाँ मौजूद हैं उन सब के लिए भी, और जो यहाँ नहीं मौजूद, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक इस कॉल को पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि खुदा हमसे चाहता क्या है। अगर हम 2026 में बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये करने की जरूरत है ताकि हम जो है वो कामयाब हों। हमारे गुनाह जो हमसे सरजद हो गए हैं किसी भी तरह, जो 2025 में गलतियां हो गई हैं, वो हमारे ऊपर से उठाने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावंद हमें सुपर नेचुरल पावर देना चाहता है। नेचुरल से निकलकर हम सुपर नेचुरल में दाखिल हो जाएंगे जब हम खुदा के लोग बन जाएंगे। मेरे अजीजों, उसकी माफौकल फितरत कुव्वत हमारी जिंदगियों में काम करेगी, हमें उठाएगी, हमें सिखाएगी, हमें समझाएगी, ताकि हम बहाल रहें, हम गुनाहों से आजाद रहें, हम उसकी दी हुई जिंदगी को उसी तरह जिएं जैसे वो चाहता है, ताकि हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहकर जो है उसको अपनी जिंदगी में जो है वो जड़ पकड़ने दें, ताकि वो हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़े और हम उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन।